मम्मा अब एक दिन ब्रेक, एक दिन आप क्वेश्चंस पूछोगे. Aku, what do you do on weekends and is phone call allowed? And I'm still in contact with them and it's just great in hostel. Did she feel any discrimination by other existing students? Hey darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. आज हमारे संग है special and most lovable guest. बेसिकली Aku is back from hostel. जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है हमारी कितनी बुरी हालत हो रही थी. We were trying to cope up, but now she is back. मैंने पहले 3 दिन तो उससे इतने क्वेश्चंस पूछे दिन रात. She told me मम्मा अब एक दिन ब्रेक, एक दिन आप क्वेश्चंस पूछोगे फिर एक दिन ब्रेक. So I really bored her. But उसके साथ there were so many questions that were coming on our DM, on our YouTube comments कि मैंने सोचा कि मैं अब खुद क्या बताऊं, let it come from the horse's mouth. So we made the list of the questions and अब Aku is going to answer them all for you. Let's go. So मैंने कुछ questions लिख लिए हैं on my diary जो मेरे DM पे आए थे. Some of the YouTube comments मैंने डाले हुए सेल पे. So मैं दोनों से questions Aku से पूछूंगी and she is going to answer them for us. So, Aku, what do you do on weekends and is phone call allowed? The second question का answer I'll give first. Phone calls allowed हैं, yes, but we get a certain time. मतलब in a week हम लोग को 36 minutes मिलते हैं around, and in that we're supposed to talk for the whole week, and then Sunday को एक recharge होता है again for 36 minutes. But then what? And we're not allowed to carry any phones. कुछ like वो बेसिकली लैंडलाइन पे ही होता है. She gets 36 minutes. वो या तो वो एक दिन में खत्म कर सकती है या उसको वो वीकली पूरा 4 minutes each करे. तो that's called a call budgeting system. So उससे बच्चे budgeting सीखते हैं. And अगर जैसे 2-3 मिनट लास्ट वीक के रिचार्ज से बच गए तो संडे को it gets added to those 36 minutes of mine. So okay, and what do you do on weekends? पहले बताओ, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है या सिर्फ संडे छुट्टी होती है? So सिर्फ संडे छुट्टी होती है. Unfortunately सैटरडे को छुट्टी नहीं होती है. तो संडे को ऐसा रूटीन होता है कि हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं. We get up a bit late and उसके बाद हम लोग मतलब ब्रेकफास्ट किया जाता है. क्लब मीटिंग्स होती है एंड देन फुल डे फ्री रहता है. क्लब मीटिंग क्या होता है? क्लब मीटिंग्स होते हैं जैसे अब हम लोग के हॉस्टल में ऐसे क्लब्स होते हैं लाइक ड्रामा क्लब एंड ऑल ऑफ दोस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्लब. इन सब क्लब्स में हम लोग whichever क्लब हम वी आर पार्ट ऑफ उसमें हम लोग जाते हैं एंड वी प्रिपेयर फॉर फाउंडर्स डे एंड वट एवर इवेंट इज कमिंग एंड देन वी परफॉर्म व्हाट वी प्रिपेयर्ड फॉर ऑन फाउंडर्स डे एंड शो इट टू आवर पेरेंट्स एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन. And after that, the whole day is free for us. Pura din we're just enjoying. Now, how difficult is it to study without having extra tuition facility in boarding? It is not really hard because the pattern that they've chosen, the pattern of books, is very easy, and the teachers also बहुत अच्छे से they make us study over there, so it's not really hard. And in case आपको ऐसे लगे कि आपकी कोई डिफिकल्टी है तो आपके पास एक हाउस ट्यूटर होती है जो जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन वो आपको हमेशा उस टीचर से बात करा सकते हैं टू हेल्प यू विद योर स्टडीज. And what's the best part of being in hostel as per your 1 month experience? So best part is that you have friends and you do not have mama. Like कभी कभी कौन होता है but mostly pro होता है. Trust me. क्योंकि मम्मा नहीं होती सिर पे. आको सो जाओ, आको खा लो. एंड द टीचर्स आर अमेजिंग. मतलब मुझे जेन्युइनली लगता है इन लोग को मम्मियों की याद इसलिए नहीं आती बिकॉज इनके टीचर्स and tutors and their house कौन है और आपके matrons and all are so amazing कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि मेरे टाइम पे आप लोग क्यों नहीं थे भाई. They are genuinely very nice. So very thank nice. you. Okay, name of the hostel बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है but I'm not mentioning it because of security purpose. But anyways, if you are genuinely looking at sending your daughter or son, जो मैंने research की है वो मैं आपको definitely help करूँगी because मैं almost 2 साल से research कर रही थी. So what you can do is अगर आप देख रहे हो to send your kids, आप मुझे DM करो, मैं आपको personally आपको I will give you the details. But on a social platform, I don't feel it is right for me to give out the details for her security. And does senior friend concept still exist?
Yes, it does. Our seniors really love us and mama was telling me कि आपके टाइम पे शायद ऐसा नहीं होता था, seniors बहुत ही गंदे थे. गंदे नहीं, बट दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक दैट्स हाउ इट वाज. हम भी जब सीनियर्स बने हमने ऐसा देखा था, इसलिए हमें ऐसा लगा कि हमें भी स्ट्रिक्ट ही रहना है. वी डिडंट नो दैट वी कुड बी फ्रेंडली टू द जूनियर्स. तो वैसा नहीं होता है, इट्स नॉट लाइक दैट. हम लोग वी आर वेरी क्लोज टू आवर सीनियर्स एंड आवर सीनियर्स आर ऑल्सो वेरी नाइस टू अस. Whatever problems we faced, like my first inter house, I had lost. I had come third. So my senior actually walked me from assembly hall to my house and was telling me that it's fine, it happens, how she had also lost some. So it was really nice. Okay, now somebody is asked, does she still eat Maggie hostel style? तो पहले मैं बता देती हूँ हमारा hostel style Maggie क्या होता था. हम एक बकेट में जिसमें हम नहाते थे, उसमें हम वो गर्म पानी लेते थे, खूब सारा मैगी डालते थे और उसको 2 मिनट में पूरा पानी हटा के उसमें मसाला डाल के वी यूज्ड टू ईट. आई नो इट्स डैम डिस्गस्टिंग, बट उस टाइम ये बहुत ज्यादा कूल थिंग थी हॉस्टल में. तो आप लोग अभी भी करते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज हम लोग खुद को ऐसा डिस्गस्टिंग लगता है दैट हम लोग बकेट में बना रहे हैं जिससे हम लोग नहाते हैं. Disgusting, but we still get Bonvita and soup from a Nescafe का machine. So ये बेसिकली थोड़े अमीर टाइप के बच्चे हैं. हमारे टाइम पे बहुत गरीबी होती थी हमारे हॉस्टल में. हम पापड़ प्रेस से गरम करके खाते थे और हम मैगी ऐसे बनाते थे. तो यार दैट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर हॉस्टल लाइफ एंड माय हॉस्टल लाइफ. हम लोग को पापड़ तो लंच में नॉर्मली मिलता है और फिर मैगी तो स्नैक्स में मिलती है लाइक once or twice a week. मुझे 5th to 12th में आई डोंट रिमेम्बर कि हमें ऑफिशियली कभी मैगी मिली हो. Just wanted to say you are a super strong and proud mother. Thank you so much. Was it easy to gel with others? It was not easy at first because everybody first day पर सब रो रहे थे. मतलब ऐसे हो रहा था first day सुबह it was fine, मतलब कोई रो नहीं रहा था and क्योंकि कबर्ड वबर्ड सेटअप करना था एंड स्टफ, तो सब उसमें बिजी थे तो ज़्यादा पेरेंट्स की याद नहीं आ रही थी. बट देन रात को एक आदमी रोया, पूरा डॉम चेन में रोने लगा, पूरा का पूरा डॉम इंक्लूडिंग मी. एंड फिर तब तो कोई जलप नहीं हुआ बिकॉज नोबडी वांटेड टू टॉक टू एनीबडी. सबको अपने मम्मियाँ की याद आ रही थी तो एवरीबडी वाज जस्ट विद देमसेल्व्स कि किसी से बात नहीं करनी. बट देन सेकेंड थर्ड वीक ऑनवर्ड्स I had 4 or 5 best friends, which was great. I'm still in contact with them and it's just great in hostel. So the next question is, how are your roommates and classmates nature-wise? So पहले मैं बता देती हूँ कि roommates मतलब इनके dorm system होते हैं. तो एक dorm में कितने बच्चे होते हैं? 18 बच्चे होते हैं. तो there is nothing like room की 2 बच्चे एक में या 4 बच्चे. एक dorm में 18 होते हैं और वही इनके classmates भी होते हैं. Yes. Could be different section. So इनका ये setup होता है. Now आपको tell how are your dorm mates? They all are very nice, but everybody loves मस्ती. तो रात को वो लोग लेट हल्ला वल्ला करते हैं. जिनको सोना होता है लाइक मी, हम लोग सो जाते हैं. But then जिनको हल्ला करना होता है, लिटरली रात को लोग अपने सूटकेसेस लेते हैं और पूरे डॉम के बेड के बीच में जो जगह होती है उस पर वो लोग रोल करते हैं रात और उसके ऊपर खुद बैठ जाते हैं. खुद बैठते हैं तो बहुत आवाज होती है. एंड समटाइम्स इवन आई एम इन्वॉल्व्ड विद दोस लेट नाइट टॉक्स. और टीचर्स डांटते नहीं है फिर? हम लोग इसलिए मस्ती तब करते हैं जब टीचर्स सो जाते हैं. वो आंटी यार टीचर्स भी देख सकते हैं. सॉरी टीचर्स. But I'm sure teachers know it and they choose to ignore this because teachers and matrons basically इतने ज़्यादा alert होते हैं, especially जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं या girls हैं boys हैं hostels में. They are so alert कि उनको एक चीटा भी शायद left से right जाता है तो they are aware. So हमारे टाइम पे भी हमें ऐसा लगता था कि हमने टीचर को बेवकूफ़ बनाया. It's just that अब जो हम बड़े हुए हमें समझ आता है कि teachers choose कि चलो ये कर लो, I will pretend कि ये मुझे नहीं पता है, but they know it all. Our house mistress and house mothers are really nice to us. हम लोग उनसे कभी कभी परमिशन भी मांग लेते हैं कि दी प्लीज हम लोग को जगने दो, तो वो जगने भी देती है. Weekends पे allow कर देती है. Correct. Okay. Now the next question is, did she feel any discrimination by other existing students जो already पहले से hostelites थे? नहीं, I don't think so because everybody else मतलब वो लोग पहले से रह चुके थे. They knew how it feels in the first year, तो they were very nice to us. All the students were like आपको जो भी हेल्प चाहिए हमारे पास आ जाओ. So in all very nice, no discrimination.